Good morning, dear students, and welcome to the world of physics. Dear students, in our ongoing chapter, that is chapter number 13, magnetic effects of electric current, last we discussed about magnetic field and magnetic field lines, right? What is magnetic field? What is magnetic field lines? Hope all of you are clear with that all concept, right? To show the magnetic field, we are using the lines and it is known as magnetic field lines, right? Any magnetic field, it has direction as well as magnitude. If we talk about magnitude, if there is a crowded area of magnetic field line, then the magnitude of magnetic field at that point is strong, and if it is not crowded, then it has a weak magnetic field, right? Then we discuss something about characteristics that never cross each other. Magnetic field lines will never intersect each other, right? And it is always from north to south outside of the magnet, right? The direction of magnetic field from north to south, and inside the magnet it is from south to north. So hope all of you are clear with this all concept. Now come to the main topic of our chapter. Our chapter says magnetic effect of electric current. If we get the magnetic field due to magnet, if we get magnetic field due to magnet, can we get this magnetic field due to current? आंसर इज यस. हमने देखा था फर्स्ट ऑस्ट्रेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, in that experiment we clearly notice there is some magnetic field due to electric current, right? So now let me study how actually this magnetic field it look likes, right? So first we are going to study magnetic field due to electric current, okay, or current carrying conductor. If this is conductor, current carrying conductor, and current is passing through it, what type of magnetic field it will produce around it, right? That we will study. Now dear students, first let me take a straight conductor. We have different type of conductor, right? हम कोई भी तरीके का शेप ले सकते हैं. सर्कुलर लेना है सर्कुलर लो, अगर उसकी लूप बनानी है लूप बनाओ, स्ट्रेट लेना है स्ट्रेट लो, कोई भी है, right? So let we study first the magnetic field due to a straight conductor, right? First it is straight conductor. Magnetic field due to straight conductor. Now suppose this is straight conductor, for example, right? This is straight conductor and current is passing through this, for example. Is this current is going to produce some magnetic field? Answer is yes. इसके आसपास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है. वो कैसे बनने वाली है, राइट? सो आंसर इज उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी बनती है, राइट? लेट वी डू वन एक्सपेरिमेंट. इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझो. सिंपल सर्किट, उसके साथ मैंने यहाँ पर एक एमीटर रखा करंट चेक करने के लिए. हियर आई एम पुटिंग अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ओके, यू कैन से अ रियोस्टेट. रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. दिस इज एमीटर. हियर one switch and this is simple conductor, right? Current is passing through this when we close the switch, right? अब समझो इसके अंदर से I current flow हो रही है. When we close the switch, when we give a complete circuit or you can say a closed circuit, I current will pass through this circuit. वो हमको यहाँ दिखेगी कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ करंट दिखेगी. Here I have put one variable resistance. Why I have put variable resistance, that we will discuss further. But here is one resistor, variable means I can change the value of resistor.
एज पर माई चॉइस, राइट. नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ से करंट पास स्टार्ट हो गई, यहाँ पर मैंने पास में रखा था एक मैग्नेटिक कंपास. समझो यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास है. दिस इज मैग्नेटिक कंपास. ठीक है. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सर्किट. वंस अगेन, दिस कंपास इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सर्किट. ओके, इट इज सेपरेट. समझो यहाँ से जब करंट पास होनी स्टार्ट हो गई तो हमने देखा कि इसके आसपास ये जो मैग्नेटिक कंपास हमने रखा था उसके अंदर कुछ हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिला. वी कैन सी सम डिफ्लेक्शन इन दिस मैग्नेटिक कंपास. समझो अगर ये पहले ऐसी थी मैग्नेटिक नीडल, अब ये ऐसी हो गई, अब ये कंपास की नीडल ऐसी हुई व्हेन करंट इज पास थ्रू दैट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस मैग्नेटिक कंपास में कुछ हलचल देखने को मिली. उसका रीजन एक ही है, वो है हमारा करंट. राइट, there is current, that is why we can see some magnetic field around it. अच्छा, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी? ऐसी सेम. राइट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर. समझो ये कंडक्टर हमारा स्ट्रेट है. दिस इज आवर स्ट्रेट कंडक्टर. राइट, अब समझो ये जो डिफ्लेक्शन देखने को मिला ना, इस डिफ्लेक्शन में थोड़े बहुत केसेस आए. जैसे कि सपोज पहले ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुई फॉर एग्जाम्पल, तो इसका डिफ्लेक्शन इस साइड आया. वॉट हैपन व्हेन आई विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट? वॉट हैपन, अभी तक यहां पर ये डिफ्लेक्शन ऐसा था, जब डायरेक्ट ऐसी थी तो उसका डिफ्लेक्शन ऐसा था. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन आई विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट? अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, करंट अब मैं अपवर्ड डायरेक्शन में भेज रहा हूं, तो क्या देखने को मिला? वी गॉट सच टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन. आर यू गेटिंग? जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन चेंज की, यहां पर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई. समझो ये यहां पर ऐसा आता था, अब ये जाके यहां आ गया है. दिस इज द डायरेक्शन. आर यू गेटिंग? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब क्या है? व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, वी कैन सी द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. राइट, वी कैन सी द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. अब दूसरी एक बात, दिस इज द फर्स्ट केस. सेकेंड केस, ये जो मैग्नेटिक नीडल थी, इसको मैंने जब कंडक्टर के नजदीक रखा, समझो यहां पर, राइट, जब ये जितना कंडक्टर के नजदीक आने लगा ना, उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होने लगा. दिस इज द डिफ्लेक्शन. जैसे 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 वो कंडक्टर से हम दूर लेते गए, इसका डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम होता गया. व्हाट इट मीन्स? इट क्लियरली मीन्स कि जब कंडक्टर के पास हमने मैग्नेटिक फील्ड मेजर की तो ज्यादा डिफ्लेक्शन, उसका मतलब कि हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा मिली है. जैसे 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 हम कंडक्टर से दूर होते गए, तब हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम मिलती गई. सो इट क्लियरली से नियर द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज हाई, एंड जैसे जैसे दूर जाते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी वीक. क्लियर? नाउ थर्ड थिंग्स, नियर द कंडक्टर it is high, and far away the conductor it is low. Right, this is the magnetic field. It is magnetic field. Now third case, when I vary this resistor. हमने जब इस रेजिस्टर को वेरी किया, मतलब कि रेजिस्टर की वैल्यू कम की या बढ़ाई. समझो, when I decrease the value of रजिस्टर की वैल्यू मैंने डिक्रीज कर दी, तो सिंपल सी बात है, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. राइट, सो जैसे ही करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, आई कैन नोटिस द मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो गेट इंक्रीज. राइट, यहां पर जैसे करंट बढ़ती गई, समझो अभी तक थोड़ी सी करंट थी, सपोज दिस इज 5 एम्पियर करंट. अगर इसकी वजह से हमको यहां तक मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, इफ आई गिव 10 एम्पियर इंस्टेड ऑफ 5, तो मैग्नेटिक फील्ड हमको यहां तक मिलेगी, थोड़ी ज्यादा मिलेगी. आर यू गेटिंग? सो व्हाट इट मीन्स, इफ करंट increase, then magnetic field will also increase. Right, if current increase, then magnetic field will also increase. If current
decrease, then magnetic field will also decrease. This is the relation between current and magnetic field. करंट बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, करंट कम हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई. फोर मोर केस वो हमने देखा. जब हमने इसको यहाँ पर रखा था नज़दीक, तो कंडक्टर के नज़दीक जब रखा था, यही केस को हम यहाँ पे दोहराते हैं, द सेम, राइट. जब इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मेजर की तो कुछ ज़्यादा मिली, यहाँ मिली तो कम मिली. यहाँ जब जैसे जैसे दूर जाते गए वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती गई, कम होती गई. इसका मतलब व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस, व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, कंडक्टर से हम डिस्टेंस इंक्रीज किए, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. एंड व्हेन वी डिक्रीज द डिस्टेंस, then magnetic field will increase. Clear? So this is the relation between magnetic field and distance. See the relation between current and magnetic field. करंट इंक्रीज हुई, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई. करंट डिक्रीज हुई, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गई. इफ आई टॉक अबाउट डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर से, हम जैसे जैसे दूर जाते गए डिस्टेंस इंक्रीज होता गया, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती गई. एंड डिस्टेंस डिक्रीज होता है जैसे जैसे नजदीक आए, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती गई. क्लियर? सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज हाउ वी कैन सी अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, राइट. स्ट्रेट कंडक्टर की तरह ऐसा होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सर यहाँ हमको पता चल गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, दूर जाएंगे तो कम होगी, नजदीक आएंगे तो ज्यादा होगी. इफ वी इंक्रीज द करंट देन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज. इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज. वो सही है. व्हाट इज द डायरेक्शन. ये सब बात हुई मैग्नीट्यूड की. नाउ कम टू द डायरेक्शन. ये सेम पॉइंट था, राइट. दिस इज द डायरेक्शन. हाउ वी कैन मेजर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड due to electric current in straight conductor, right. So for that we are using right hand thumb rule. Right hand thumb rule. This is very important, dear students. For your right hand thumb rule says, कहता क्या है समझो. You are going to use your right hand thumb to find the direction of magnetic field due to electric current, right. So suppose this is our straight conductor, right, and current is passing in upward direction through this conductor, right. अच्छा, इस कंडक्टर में से करंट अगर पास हो रही है तो सिंपल सी बात है, हमको मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास मिलने वाली है, लाइक दिस, राइट. हियर यू कैन सी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया. इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, उसके जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक बनती जा रही है, राइट. नाउ हाउ आई कैन यूज दिस राइट हैंड थंब रूल. सिंपल, यू हैव टू यूज योर राइट हैंड थंब, राइट. जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. यू हैव टू पुट योर राइट हैंड थंब इनटू द डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर करंट इस डायरेक्शन में पास हो रही है, दिस इज द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट. एंड ये जो उंगलियां की जो डायरेक्शन आती है ना, यहां से लेके यहां तक, राइट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ये जो डायरेक्शन आती है, इसकी जो डायरेक्शन ऐसी, दिस इज the magnetic field around that conductor. Clear? Once again, how we are going to use right hand thumb rule. Put your right hand thumb in the direction of current. अगर direction of current ऐसी है, समझो this is the direction of current, then this is the way you can use the right hand thumb, right. Right hand thumb in the direction of current. So this is our magnetic field. This is our magnetic field. Clear? If it is in downward direction, समझो कुछ current ऐसी है, this is the downward direction, then this is the magnetic field from this to this. Clear? So here we get direction in this, from this to this. This is how we can use right hand thumb rule. Once again, very simple. जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है ना, उस डायरेक्शन में अपना राइट हैंड थंब रख दो. ये थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन बता रहा है, इट इज शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. और ये जो आती है उंगली की जो डायरेक्शन,
उसके आसपास जो उंगली की डायरेक्शन आई, दिस इज आर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक current. So hope all of you are clear with this concept, the magnetic field due to a current through a straight wire, right, or straight conductor, students, and practice how we can find this rule and remember it. It is very important for your future study. So prepare a note for this. Thank you very much and all the best.